Hey, what's up, guys? It's Vishal Parmar. Welcome to the Greedy World, the place where our focus is on learning and to cultivate ourselves. The 40th Laws of Power by Robert Greene. Law 2. Never put too much trust in friends. Learn how to use your enemy. Never trust anyone completely and study everyone, including friends and loved ones. In order to understand this law, let's look at the history and learn from their mistake. The law has been observed in Michael III and his friend Basilius. In mid-9th century AD, Michael placed too much trust in his friend Basilius. They met few years before when Michael had been visiting this stable just as a wild horse loses control and Basilius saves Michael's life. His strength and courage impressed Michael, who immediately raised his position from being obscurity of the horse trainer to the head of the stable. He loaded his friend with gifts and favor until they became inseparable. Michael turned poor Basilius into sophisticated and educated courier, who later became greedy for more wealth and has his former benefactor and best friend Michael murdered. Michael stacked his future in a sense of gratitude he thought Basilius must feel for him. He had created a monster. He had allowed a man to see power, who wanted more, who desired for anything and he got it, who felt encumbered by the charity he had received and simply did what many people do in such a situation. They forget the favor they have received and imagine they have earned their success through their own merit. At Michael's moment of realization, he still could save his own life, but friendship and love blinds every man in their interest. So guys, what this law says that we all have a two-face of our life. One is our social life and one is our professional life. In our social life, our friends plays very important role. जहाँ पे आप अपनी सारी प्रॉब्लम अपने रिलेटिव से पहले अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो. एंड अनदर वन इज योर प्रोफेशनल लाइफ, जहाँ पे यही ब्रदरहुड, यहीं पे सेंटिमेंटल कनेक्शन जो आपका फ्रेंड के साथ होता है, दैट हार्म्स यू. बिकॉज प्रोफेशनल लाइफ इज समथिंग जहाँ पर आता है आपका करियर, जहाँ पर आता है आपका बिजनेस, जहाँ से यू मेक अ बिग बक्स. ठीक है. सो इन दिस प्रोफेशनल लाइफ, never hire someone whom you can never fire, which means that अगर तुम्हारा फ्रेंड उतना स्किलफुल नहीं है तुम्हारे रिक्वायरमेंट के अगर तुम्हारे प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, सो नेवर अलाउ हिम टू एक्सेस द की ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ. ठीक है. सो नेवर हायर समवन whom you can never fire, मतलब तुम उनसे कभी भी हायर मत करना जिसे तुम धक्के मार के अपने प्रोफेशन से बाहर नहीं निकाल सकते. मैटर नहीं करता कि जो अगला बंदा है वो स्किलफुल है और वो तुम्हारा एनिमी है. जस्ट यूज हिम फॉर योर बेनिफिट, शो हिम द कॉमन गोल एंड यूज हिम टिल द मोमेंट यू नीड हिम एंड जस्ट थ्रो हिम, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे there is only one man who holds the power. This is the example which I commonly used to put when people used to ask me that why you leave us. Mainly people used to ask me that why you leave us. See, and this is the example I usually put there कि जंगल में शेर और राजा सिर्फ एक होता है, राइट. एंड उस पावर को, उस सत्ता को पाने के लिए यू हैव टू गो थ्रू एंड यू हैव टू क्रॉस एंड एवरी लिमिट. सो अगर तुम्हें वो चाहिए, वो सत्ता चाहिए और तुम्हें पता है तुम्हारे साथ और भी कॉम्पिटेंट्स होंगे, जहाँ पे और भी कैंडिडेट होंगे जिसको वो चाहिए होगा, वो पोजीशन चाहिए. लेट्स सपोज तुम्हारे साथ एक बंदा है जिसे भी वो पावर चाहिए बिकॉज यू हैव सोन दैट. और लेट्स सपोज अगर वो तुम्हारा फ्रेंड होगा तो देयर इज एन सेंटिमेंटल कनेक्शन, देयर इज एन इमोशन, देयर इज एन ब्रदरहुड, देयर इज एन कि वो रिलेटिव हो सकते हैं. तो तुम जब उसका गला काटोगे या फिर तुमसे धक्का मारोगे जस्ट बिकॉज यू नीड दैट पावर, तो तुमको 10 बार सोचना पड़ेगा ये काम करने से पहले. लेकिन अगर वहाँ पर आपका दुश्मन होगा जिसे तुमने सिर्फ ये कॉमन गोल दिखाया होगा एंड ऑल दी वो पूरे जर्नी में तुम्हारे संग लॉयल रहा होगा, बिकॉज योर एनिमीज हैव टू लॉट ऑफ थिंग टू प्रूव यू, तो दे पुट ऑल देयर एफर्ट्स. तो तुम एक बार भी नहीं सोचोगे अपने एनिमी का धक्का मारने के लिए और या फिर उसका गला काटने के लिए, बिकॉज यू नीड दैट पावर एंड दैट्स व्हाट दिस लॉ सेज दैट नेवर पुट टू मच ट्रस्ट in friends.
use enemy. Learn how to use enemy. So let us understand what are the lessons we should take away from this story. So first point is, friend will never openly disagree with you in order to avoid argument. So what does this point says that ये नॉर्मली होता है हम सबके साथ कि जो तुम्हारा दोस्त होगा वो तुमसे आर्ग्यूमेंट ना करे होए ज़्यादा, मतलब लफड़ा ज़्यादा ना हो, उस वजह से वो तुम्हारे मुंह में नहीं बोलता, वो पीठ पीछे बोलता है जस्ट टू वो उस रिलेशन को हार्म नहीं करना चाहता, तो वो क्या तुम्हारे पीठ पीछे ही बोलते हैं नॉर्मली. देयर आर वेरी फ्यू पीपल जो तुम्हारे मुंह में बोलेंगे, मतलब दिस इज द मिस्टेक यू हैव मेड एंड यू हैव टू करेक्ट दिस. ऐसे बहुत कम दोस्त होते हैं, मतलब मेनली तो लोग, मतलब जो फ्रेंड्स भी होते हैं वो ज़्यादा लड़ाई ना हो, वो उस रिलेशन को मेंटेन रखने के लिए वो तुम्हारे मुंह में नहीं बोलेंगे तुम्हारी गलती, वो पीठ पीछे तुम्हारी डिस्कस करेंगे. हालांकि वो कोई कंप्लेन ना, मतलब कोई ऐसी, मतलब तुम्हें गाली ना दे, तुम्हें बुरा भला ना बोले, बट स्टिल दे से दैट यार क्या कर दिया उसने, जस्ट बिकॉज ऑफ हिम आई एम जस्ट फेसिंग दिस लॉस, और इवन दैट पर्सन इज नॉट able to afford that loss. तो वो तुम्हारे मुंह में नहीं बोलेगा just because you are his friend. तो this is what this law says, that friend will never disagree with you in order to avoid argument. वो तुम्हारे मुंह में तुम्हारी बस अच्छी बातें ही बोलेंगे, हालांकि तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी हो या ना हो. So that's what this law says. Hiring friend will limit your power. It is so true that hiring friend will limit your power. See, not every people have same capability to grab something. ठीक है. सो अब जितनी कैपेसिटी ए की है उतनी बी की नहीं है, बी की थोड़ा कम है, और सी की और कम, और डी की तो बिल्कुल ही खत्म. सो अनटिल एंड जब तक तीनों के चारों बराबर स्किलफुल नहीं हो जाते, जब तक चारों के चारों वर्थ ही नहीं हो जाते, सो मतलब जो काम 2 दिन में होना है वो काम अब 5 दिन में हो रहा है, बिकॉज अब तुम्हें सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा. सो दिस इज व्हाट दिस लॉ सेज कि हायरिंग फ्रेंड विल लिमिट योर पावर. इससे बढ़िया तो तुम अपने एनिमीज को यूज कर लो, राइट, क्योंकि वो ज़्यादा वर्ती है, वो ज़्यादा स्किलफुल है. सो दैट्स व्हाट दिस लॉ सेज. हायरिंग योर एनिमी एंड वर्किंग विद देम कीप्स योर हिल्स शार्प, फोकस्ड एंड अलर्ट. सो व्हाट डज दिस पॉइंट सेज दैट आपको पता है आपका एनिमी भला आपके लिए कितना भी लॉयल है आपकी जर्नी में, बट थ्रू आउट द जर्नी आप पूरे के पूरे अलर्ट रहोगे, जस्ट बिकॉज आपके दिमाग में एक डाउट तो रहेगा कि यार ये तो मेरा एनिमी है. सो कहीं ना कहीं ये इसके दिमाग में भी कुछ चल रहा होगा, और जो आपने उसे अपने पर्पस के लिए ही उसे यूज़ किया हो. सो दैट्स व्हाट दिस लॉ सेज कि वर्किंग विद योर एनिमी एंड हायरिंग टू देम will keep your heels sharp, alert and focused. Enemies expect nothing, so they will be surprised when you are generous to them. So what does this point says, that enemies have very much thing to prove you. There are a lot of things they prove you to show that they are loyal. So this is what this law says, that enemies expect nothing. They will be surprised when you are generous to them. So that's it guys from today's video. Hope you guys like, and if you guys like this video, so like it and share it with someone you know. And yes, don't forget to subscribe my channel, and I love you guys for making my day amazing. So till the next video, tata, bye bye, take care.